हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के कॉन्सेप्ट को समझा था और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको बोला था कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो अप टू दिस पार्ट वी have the concept of local maxima, local minima, and absolute maxima, absolute minima. And one more thing, we also know that what type of question will contain the concept of absolute maxima or absolute minima, and what type of question will have the concept of local maxima and local minima. We have gone through all those things, okay. So I hope there should not be any confusion, okay. Now in exercise 6.5, till now we have not discussed about question number 1 and question number 2. So now today we will discuss about question number 1 and question number 2. So okay, let us see question number 1. Find the maximum and minimum value if any of the following function given by, ठीक है. So in all these cases you have to find out the maximum value and minimum value. So till now what we have studied, that to find out the maximum value and minimum value, first we have to find out the point of maxima or point of minima, then only we can find out maximum and minimum value. And to find out point of maxima and minima, what we have to do, first we have to go through the first derivative of the function, because first derivative will only give you the point of maxima and minima, that means what, critical point, okay. So till now what we know, that if we want to find out maximum and minimum value of the function, first we have to find out the critical point, that means what, point of maximum or minimum. But now in question number 1, it is giving you some idea that without actually finding the point of maxima and point of minima directly, we can find out the maximum and minimum value. So this question number 1 will tell you about that concept, that how to find out maximum and minimum value without using the derivative concept. By derivative concept also we can find out, but you can solve the question number 1 without using derivative. So you already know the derivative concept, so obviously you can solve question number 1 by derivative. But now I am going to discuss question number 1 without using derivative, okay. So in question number 1, what we can do, that suppose, okay, let us take question number 1. Fx is equal to, it is 2x minus 1 whole square plus 3. Okay, just if you take a look at the function, this part is always positive and this part is always positive. So your function will be always positive, it is never going to be negative, yes. So what can you say, that its value is always increasing, so it cannot have maximum value, it cannot have maximum value, but it can have minimum value, obviously. So now you tell me that what will be the see, because one more thing you can just check, that this part will always change, this part is always constant. So this part will change, it will totally depend upon the value of x. And so now just tell me that what will be the maximum and minimum value of this part. It is always positive, so its maximum value you cannot determine, but you can determine the minimum value. See, this part can be 0, this part can be 0, and at what point this will be 0, at x is equal to 1/2. सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो सकता है, ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट पार्ट है. तो इस फंक्शन का होल जो वैल्यू है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. सो हम लोग अब बोल सकते हैं कि अगर ये पार्ट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये अधिक से अधिक 0 हो सकता है. तो ये 0 कब होगा, 1/2, यानी कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 3, वैल्यू ऑफ fx विल बी 3. And at what point, at x is equal to 1/2. See, we have not used the concept of derivative. Without using the derivative concept, we have solved just by using the concept that the perfect squares are always positive, so it will be always increasing. So depending upon that we can find out the maximum and minimum values. Similarly, question number 2, see, I told you can solve question number 1 by using derivative, it's your homework. But right now I am discussing question number 1 without using derivative. So question number 2 में आप क्या कर सकते हैं, in question number 2 you can use the concept of perfect square method. आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना. कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज़ कीजिए, दैट विल
now after using the concept of completing the square, question number 2 will look like question number 1, and after that you can tell me whether it will have maximum or minimum value. Okay, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका कि फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, फंक्शन में ये वाला पार्ट देखिए पॉजिटिव है बट उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है. ये वाला पार्ट पॉजिटिव है बट उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये पार्ट हमेशा नेगेटिव होगा. ये पार्ट तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना. इसका वैल्यू जो घटेगा, यानी कि इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू बट इट विल नॉट हैव मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमेशा घट रहा है ना. तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू नहीं हम पता कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं. तो इसका अब आप देखिए कि इसका मिनिमम वैल्यू तो नहीं पता कर सकते हैं बट इसका मैक्सिमम वैल्यू आप पता कर सकते हैं. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0, और ये 0 कब होगा, x=1 पे, यानी x=1 पे इस फंक्शन का जो है वो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 10, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x³ + 1. सो इफ़ यू ऑब्जर्व x³ + 1 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा. सो इट विल हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, है ना. आप डेरिवेटिव से ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, और जो हमने अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो देयर इज नो नीड टू यूज डेरिवेटिव, डायरेक्टली यू कैन टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना. So in that sense question number 1 is important. If it will come in 1 marks question, obviously you can solve it without using derivative. Okay, so actually जितने भी आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन हैं मैक्सिमा मिनिमा में, उन सबको आप बिना डेरिवेटिव के यूज़ किए हुए सॉल्व कर सकते हैं. हर में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, है ना. तो उसका फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही आएगा, या क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आएगा, है ना. तो उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. सो लेट अस गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 2. अगेन इन दिस केस ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. अब एक चीज़ अब यहाँ पे देखिए कि ये जितना भी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ऑल दिस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट. और हमने अब पढ़ा है कि जो इस चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं. बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन थे, इसलिए विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दोज कॉन्सेप्ट वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, हम लोग उन सब चीज़ को चेक नहीं करते थे. बट अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 4 भी डिफरेंशिएबल नहीं है. ये दोनों फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हैं, 3 और 5. सो उसको तो आप डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं. बट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 एट सम पॉइंट दे आर नॉट डिफरेंशिएबल. सो हमने देखा था मोड एक्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है. इसी तरह यहाँ पे देखिए मोड x + 2 - 1 है ना, जस्ट चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. मोड x + 2 - 1, मोड x + 2 - 1, मोड x + 2, मोड x + 2 - 1, है ना. सो फंक्शन है मोड x, क्या था, मोड x + 2 - 1, मोड x + 2 x + 2 -1. अब आप देखिए इस फंक्शन को देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट कहाँ पर बना हुआ है. ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो आपका ये -2 पे बना हुआ है ना. ए इज अ कॉर्नर पॉइंट, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -2. बट आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप फंक्शन को पूरी तरह से गौर करेंगे तो जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो ए पर ही है. इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो ए पर ही है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पार्ट का, जो इसका मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर है, ए पर ही है ना. बट ए पर तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. और वो पॉइंट कौन सा है, -2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x = -2 पे. तो ऑब्वियसली हम इस केस में कम्प्लीटली डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं. किस पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, -2 पे. बाकी सारे पॉइंट पे तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है वो
डेफिनेशन, मॉडुलस के डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, बाद में डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। सो एफ एक्स आपका है मोड एक्स प्लस टू माइनस वन, है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस वन वेन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, है ना, एंड माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन वेन एक्स प्लस टू इज लेस देन ज़ीरो, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस एक्स माइनस टू, सो माइनस थ्री वेन एक्स इज लेस देन माइनस टू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमको पता है माइनस टू पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है, सो एफ डैश एक्स तो हम सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन when x is greater than equal to minus टू and minus वन when x is less than minus टू। so what do you observe, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो माइनस टू है इसके राइट साइड में, ये माइनस टू का राइट साइड है ना, माइनस टू का ये राइट साइड है, माइनस टू से बड़ा है तो राइट साइड है, माइनस टू के राइट साइड में जो डेरिवेटिव का साइन है, ये जो डेरिवेटिव का साइन बता रहे हैं ना, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, माइनस टू के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव है। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फंक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, फंक्शन अगर नेगेटिव डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है। अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव यानी कि टेंजेंट का स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो एक पॉइंट पर मिनिमम होगा, और वो पॉइंट कौन सा है, माइनस टू, क्योंकि माइनस टू के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज कर रहा है डेरिवेटिव का, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस टू इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमने देखिए पता कर लिया। सो नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, अब एफ ऑफ माइनस टू पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो फंक्शन था क्या, मोड एक्स प्लस टू माइनस वन, तो माइनस वन पॉइंट ऑफ इसका मिनिमम वैल्यू है। और चेक भी कर लीजिए ग्राफिकली, हमने अभी ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, इसका देखिए मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस वन ही है ना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस वन ही है ना, माइनस वन ही है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस वन ही है, देखिए इसका जो मिनिमम वैल्यू है माइनस वन ही है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू भी वैसा ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मॉडुलस सॉल्व करिए, उसका डिफ्रेंशिएट कीजिए और देखिए कि डेरिवेटिव के लेफ्ट जो पॉइंट है उसके लेफ्ट राइट में क्या फंक्शन का साइन आ रहा है। 3 नंबर तो ईजी है, 3 नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, 3 नंबर मैं सॉल्व नहीं करूँगा डेरिवेटिव क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। 4th नंबर साइन 4x प्लस 3 मोड लगा हुआ है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3, ठीक है, मोडलस। देखिए अगर ट्रिग्योमेट्री है ना तो ट्रिग्योमेट्री भी इजी है, क्यों, साइन एक्स का हमको पता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये कैसा भी एंगल हो। तो हम बोल सकते हैं ना साइन 4x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। अब +3 है तो दोनों साइड हम +3 कर देते हैं, साइन 4x और +3, तो सभी जगह हमको +3 करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट में, है ना। तो साइन 4x प्लस 3 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, साइन 4x प्लस 3 का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2 और 4, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, है ना। अब इसी तरह मोडलस लगा हुआ है, तो मोडलस अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑलरेडी साइन 4x प्लस 3 का वैल्यू पॉजिटिव है, तो मोडलस लगने पे भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मोडलस लगने पे भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोल सकते हैं ना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा और मिनिमम वैल्यू, और साइन 4x प्लस 3 यही आपका फंक्शन है ना मोडलस। सो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और 4 और मिनिमम वैल्यू कितना है 2, ईजी हो गया ना, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोडलस नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया साइन एक्स का मैक्सिमम और मोड साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हम लोग जानते हैं -1 और 1, तो मोड साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब ये देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये वैल्यू जो है -1 और 0 है ना, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। लेकिन जैसे ही हम मोडलस करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव होकर ये वैल्यू किधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा ना। यानी कि मोड साइन एक्स का जो वैल्यू है, मोड जो साइन एक्स का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में हो जाएगा। यानी कि मोड साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि -1 से 0 वाला पार्ट सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो किससे ओवरलैप कर जाएगा, इसी पार्ट से ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला पार्ट है ना। सो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग थोड़ा सा ये एक्सटेंड करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस 4x -3 का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रोसीड करेंगे। cos 4x का मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -1 और 1, ठीक है। तो cos 4x -3 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सब साइड सारी तरफ हमको -3 से ओवरलैप करना होगा। तो cos 4x -3 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 होगा, जो मिनिमम वैल्यू है -4 होगा। बट हमको तो चाहिए मोड का। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वैल्यू है -2, इधर 0 है और ये वैल्यू है -4। अगर आप मॉडुलस लगाएंगे इसमें तो ये वाला वैल्यू जो है इधर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये ओवरलैप करके कितनी दूर तक चला जाएगा, 0 से 4 तक ना। और ये वाला, सॉरी 0 बीच में नहीं है, गलत हो गया ना, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 तो इधर है ना, 0 तो ये 0 से -4, ये -2 है और ये -4 है और 0 यहाँ पर है ना, 0 यहाँ पर है। तो अब देखिए ये वाला वैल्यू है, ये है ना -4 से -2। अगर इसको इस पे मोडलस आएगा तो ये वैल्यू इधर चला जाएगा ना, 2 से 4 तक चला जाएगा ना। तो मोड cos 4x -3 का मोडलस कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 से लेकर 4। तो इसका जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, 4, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2। तो मेरे ख्याल से अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया इससे आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि अगर ट्रिग्मेट्री में मॉडुलस है तो हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करेंगे, है ना। सो अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12, अब आपके पास देखिए आज भर का समय है। कल से हम लोग फिर जो मेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, लेट मी नो, देन वी विल हैव सम लाइव क्लासेस एंड देयर वी विल डिस्कस आवर डाउट, ओके।